This is GB Road in Old Delhi, now known as Swami Shraddhanand Marg. It's one of India's most well-known red light districts where sex work has long existed. By day, it looks like any other busy market lined with hardware shops, vehicle parts stores and everyday businesses. But by night, the scene changes. Above these shops are brothels and cramped rooms where hundreds of women live, working as sex workers. It is in these rooms that journalist Vartika Nanda spent time speaking to the women in 2022, listening to their stories of betrayal and survival. अंधेरी की भी इस दुनिया में हर शाम बहुत से ग्राहक आते हैं। ये महिलाएं किसी मजबूरी में उनका इंतजार करती हैं। आने वाले को इनके किसी सपने से कोई सरोकार नहीं। सारा सौदा सिर्फ पैसे का है। Vartika looked into the daily lives of sex workers, many of whom have been living here for years and some for life. The rooms here were dim, congested, with tired, peeling paint and walls marked by grime that made the spaces feel even smaller. Some had just a narrow path to move in. Other rooms had barely enough space for a bed and a few belongings. In the smallest rooms, there was nothing beyond the bed, no place to stand, only posters of gods hanging on the walls. इन कमरों में कहीं कोई खिड़की नहीं है। यहाँ पर ताज़ी हवा नहीं आती। यहाँ पर कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है। This is Swati. She has been working as a sex worker for over 20 years. She was born in a small village in Maharashtra. When she was young, a man approached her with promises, a job, a better life, and the hope for marriage. Trusting him, she left home. At first, he kept her at his house in Delhi. Later, he introduced her to another man, saying this would be the man she would marry. But things were not what they seemed. That man stayed for a while and then one day, he disappeared without a word. 3 months later, Swati was brought to the brothels of GB Road. And from that moment, there was no going back. The life she had pictured for herself fell apart. As customers came and went, Swati found one man she began to trust. Believing she had a second chance, she ran away with him, hoping to start a new life. But she soon realized he too had other intentions. जब पहली बार यहाँ आए तो अच्छा लगा? नहीं चलेगा, भाग गई थी। फिर वापस नहीं आना था दीदी तुम्हें? भाग गई थी तो कस्टमर के साथ भागी थी। वो वापस ले आया? और कस्टमर के साथ भागी, उसने बम्बई भी भेज दिया मुझे। फिर वहाँ बेच के फिर वहाँ पे वो चले गए। मेरी बच्ची छोटी थी, वहाँ रह गई मैं 7-8 साल। जाने का कोई गुजारा नहीं था मेरा। फिर वहाँ से घर चले गए। The day she finally returned home, everything had changed. कभी-कभी गांव जाती है। गांव में अब अपना कोई है नहीं। माँ को दिखाई नहीं देता और भाई को सुनना नहीं चाहता। इस अकेलेपन को उन्होंने अपना लिया है। तो मुझे मालूम है जो तुम्हें दुख है ना, वो कोई नहीं कर सकता। शाबाश रोनी। ठीक है? Vartika said at the time around 3,000 women were living in these brothels. कोठे नंबर 50 में लिखा है नाबालिग लड़की से देह व्यापार करना या करवाना गंभीर कानूनी अपराध है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आज तक कितनों को ये सजा हुई? ताज्जुब की बात यह है कि इन तमाम कोठों में जब आप इन महिलाओं से उनकी उम्र पूछते हैं तो सभी अपनी उम्र करीब 40 के आसपास बताते हैं। किसी की भी उम्र उससे बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। आप जब ये सवाल पूछते हैं कि सबसे छोटी उम्र की लड़की कौन है, तो सब घबरा जाते हैं। और फिर जवाब ये होता है कि उम्र कहीं 30 या 35 के आसपास होगी। जो बहुत उम्र दराज हैं, वो भी अपनी उम्र को 40-45 से ज्यादा बताना नहीं चाहते। उम्र को ना बता पाना भी मजबूरी है। In one of the rooms, Vartika noticed a young boy lying on a bed, his legs loosely tied with a rope. When she asked his mother Pooja about it,
She replied, मैडम ये इतना इनोसेंट है, नहीं इसका बच्चा है, पूछो नहीं। रुकता नहीं मैडम, चलता रहता। Pooja lived here for nearly 5 years. During that time, she chose to have a child. Her son lives with a disability. Pooja said it was difficult for her to work when customers came, and this was the only way she could keep him safe. As of 2025, Pooja no longer lives in these brothels. She has begun building a life away from GP Road. इसको हम हेल्थ केयर के लाइन में भेज रहे हैं, और इसको मगर हेल्थ केयर का साथ काम करवाने के साथ इसको इंटरनल वाली जगह देंगे, जैसे इंग्लिश जानती है, थोड़ा बहुत इसको कंप्यूटर सिखाकर जो अंदर के अकाउंट के काम है या किस इलाके में नौकरी करेंगे? ये हमारे वैसे दक्षिण दिल्ली नहीं, वैसे और वहीं पे इसको जहाँ पे है घर भी देंगे, ताकि इसको कहीं बाहर अपना पैसा ना खर्च करना। Sub-Inspector Kiran Sethi, who was the in charge of Shraddhanand Marg GB Road Police Station, worked to improve livelihoods of sex workers. और इसके लिए मैंने एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, जो इसके कान नाक गले का इलाज करेंगे। चलो अब आप इसे गले मिलो। अच्छा, और इस बच्चे को खूब सारी बधाई हो। हाँ पूनम, अब तो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। ये अपनी बड़ी बहन खुश हो? नौकरी करने जाओगी? हाँ जाऊंगी। फिर यहाँ तो नहीं आओगी ना दोबारा? पक्का से? Since 2022, Pooja has taken on multiple jobs, and today she makes a living driving her own auto rickshaw. But unlike Pooja, many women remain trapped here for life. This is Shanti, who has been living here for decades. She is over 60 years old. कब से हो यहाँ पर? यहाँ तो हो गया हमारे को बुढ़ापा आ रहा। किसके जमाने से हो? कौन से जमाने से? हो गया रे बेटा, अब पढ़ा है, हम पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। इंदिरा गांधी के जमाने से, इससे पहले से है। अच्छा, तो आपको साल याद नहीं है, ये याद है कि इंदिरा गांधी के जमाने से है। हाँ। जब आप यहाँ आई थी तो आप वही काम कर रही हैं। कितने सालों से अब ये काम है? अब ऐसी है बेटा, चल रहा है, रोटी पानी है, बस यही बात है, भगवान के दिए, क्या कहेंगे। यहाँ आई कैसे? आई कैसे? आए पेट के लिए, पेट के लिए आना पड़ता है, बच्चे पालना, बस। कोरोना के समय में बहुत सी औरतों के सामने जिंदगी को चलाने की बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। लोग यहाँ कम आ रहे थे, तब भी कई महिलाएं गांव तो गई, लौट कर फिर आ गई। गांवों ने उन्हें अपनाया नहीं, कोठों ने उन्हें छोड़ा नहीं। मैं डांस बहुत अच्छी करती है, गाना अच्छी गाती है, हमें अच्छा लगता है। चलो एक गाना डांस ऐसे एक्सरसाइज करती है, बस इनको एरोबिक्स कराती है, अभी गाना करेंगे। एरोबिक्स करती है, योगा करती है ना, तो इन्हें अच्छा लगता है। क्या क्या बनाओगी? सब्जी बनाऊंगी, चिकन बनाओगी? और खाएंगे पिएंगे, जो भी तो अच्छे रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तो जो खाना बनाती हो कितनी महिलाओं का एक साथ बनाती हो? सब अपने अपने बना के खा लेते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कि एक सबका बनाना, ऐसा नहीं, एक जने बनाते हैं तो सब मिलके खा लेते हैं। कोई एक से एक जने बना के खा लेते हैं, मिक्स मिला के सब खा लेते हैं। मिला के खाओ। अच्छा, पढ़ा लिखा कौन पढ़ा है? ज्यादा पढ़ा है? यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं, छोड़ गवारी है। यहाँ पे पढ़े लिखे होते तो कोई जॉब भी कर लेते हैं, यहाँ तक कौन आते हैं। दीदी अगर ये क्या पूछे कि आपको कोई पढ़ाए तो आप पढ़ोगे कि नहीं? तो पढ़ने की जब उम्र थी, नहीं पढ़ पाए, अभी पढ़ और ये कहती हैं कि इनके बीच में आपस में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं। पीछे देखिए, सभी इबादत गाहों में तस्वीरें हैं इनके पास, सबकी पूजा करें। लेकिन एक बात बड़ी हैरान ये महिलाएं अपनी किसी तकलीफ के बारे में बात करने से बचना चाहती हैं। इनका कहना है कि बहुत संतुष्ट है, जो भी इनका जीवन है उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? कुछ भी बोलना चाहते हैं? जो उन्होंने नहीं बताना आप उनसे नहीं निकाल सकते। तो कई बार क्या होता है, अपने मन की जो बात होती है हम दूसरों के साथ बोलने की कोशिश करते हैं, तो यही एक तो जो बताना चाहते हैं, जो तुम्हारे मन में वो बता दो, कुछ नहीं बताना। ठीक, कोई बात नहीं। According to Indian law and Supreme Court guidelines, sex work itself is not illegal in India. An adult can legally sell sex if it's consensual, but beyond this, there are many limits. So while sex work itself is legal, running a brothel is not.
Those convicted can face 1 to 3 years in prison and a fine on a first conviction, and 2 to 5 years on subsequent convictions. Soliciting in public spaces is also a crime, punishable with up to 6 months in prison or a fine. Anyone knowingly living off the earnings of someone else's prostitution can face up to 2 years in prison or a fine. And any form of trafficking or coercion is strictly prohibited under the law. While the law aims to prevent exploitation, in practice, it leaves sex workers with very limited and often unsafe options to live and work. Over the years, courts have stepped in. In 2022, the Supreme Court noted that sex workers should be treated with decency and dignity. बाथरूम जहाँ पर जब ग्राहक चले जाते हैं, थकान से चूर हो जाते हैं, आधी दोपहर में उठती हैं और तब वो यहाँ पर नहाती हैं और फिर एक नई सुबह की शुरुआत हो जाती है। इन्हीं तहखानों में कुछ बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों के आगे बड़ा सवाल होता है। अब दिल्ली पुलिस इतना ज़रूर करने लगी है कि इन बच्चों को एक आसरा देती है। इनमें से कई बच्चे हर रोज़ साथ में लगे हुए चौकी में जाते हैं। वहाँ पर सब इंस्पेक्टर किरण सेठी उन्हें शामिल पढ़ाते हैं। NGOs and support groups have stepped in to offer healthcare, rehabilitation, and skills training over the years. But the social and economic pressures remain. घर से कोई संपर्क है? जाते हैं आते हैं। ये कभी बात करता है छोड़कर दिल्ली में बस जाओ। कभी अभी इतना दूरी उधर गए तो अभी थोड़ा देर ट्रेन में सब फुल रास्ते हैं। While the law does not criminalize consensual adult sex work, social stigma often does, leaving many women struggling not just to survive, but to live with dignity.